کہا کہ کوئی جرم تو نہیں کیا نا. اس ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا ہے. نو کمنٹس. میں ذرا بندہ ہوں ڈیلر قسم کا, میرے ساتھ جو بات کرنی ہے نا وہ ٹھیک والی کرنی ہے. طلب کیا دینا ہے, بیوی ہے میری, دس از نکاح نامہ اور دس از میں. کینر لگا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں, بندہ کس پانی میں ہے, بندے کا کردار کیا ہے, کریکٹر کیا ہے اس کا, سب ہم سمجھتے ہیں. یہ میری چوتھی بیوی ہے, اس سے پہلے میری 3 بیوی ہیں. اس کے پاس گھر ہے وہ اس کو دے دیا ہے, اس کو گرینڈی گاڑی میں نے لے کر دی ہے, وہ 4 سیٹ سونے کے میں نے اس کو دیے ہیں, باقی کیا دوں. اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. میں پراپرٹی والا بندہ تھا, قاتلہ عورت 3-4 مہینے مجھے برباد کرنے کے بعد, ذلیل کرنے کے بعد میرا بی پی لو ہو گیا. میں نے کہا یہ تو پوری کی پوری, میں تو آیا تھا کچھ چند دن افیئر چلانے کے لیے, یہ میں کہاں پھنس گیا. حکمت کے شعبے سے نام کمانے والے اور سوشل میڈیا پر خاص اہمیت کے حامل حکیم شہزاد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں دانیہ شاہ سے. دانیہ شاہ جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, عامر لیاقت حسین کی بیوہ کے طور پر سامنے آئی. عامر لیاقت حسین نے ان سے شادی کی. جنوبی پنجاب کے ضلع لودھرا سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ انتہائی کنٹروورشل ہوتی گئیں, اور بالآخر ایک سڈن ڈیمائز آف ایک جو ہے وہ عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد چیزیں پیج جو ہے وہ ٹرن ہوا, صفحہ جو ہے وہ پلٹا گیا. اور اس کے بعد دانیہ شاہ سامنے آئی ایک جد و جہد کرتی ہوئی کہ اپنا حق رائٹ فلی اپنا حق لینے کے لیے 7.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد کے حوالے سے. تو ایسے میں انہیں ٹکرا گئے, انہیں مل گئے حکیم شہزاد. اب آگے کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے, اور ہم شروع کریں گے دانیہ شاہ سے. دانیہ شاہ, سب سے پہلے تو آپ کو اس رشتے کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. کہاں ملے تھے آپ کو حکیم صاحب, اور آپ کو کس چیز کی, ان کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے مبارک دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا بول, میری حکمت دا دنا لا آخر کمیندہ پیلندہ نہیں بول نہیں سکتی, اچھا بول. دل نے آہستہ بولتی ہیں, اچھی لگتی. کوئی بات نہیں, آپ اچھا بولیں. تو مجھے تو نہیں ملے تھے, یہ مما گئی تھی دوائی لینے ان سے, تو پھر ان کی جان پہچان ہوئی آپس میں. تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہمارا کیس چل رہا ہے اور اس طرح. تو پھر ہماری ملاقات باربیکیو میں, اس کے بعد سے ہمارے مطلب کہانی شروع ہو گئی. اچھا, کیا پہلی نظر میں دل دے بیٹھی ہیں آپ, یا آپ کو سب سے اچھی اٹریکٹ کیا کی؟ وہ تو والدہ سے, تو آپ کی والدہ سے تو ان کی ملاقات ہوگی, آپ کو کیا اچھا لگا کہ ان کے کردار کی مضبوطی, ان کا عزم, ان کا آپ کے ساتھ سٹینڈ لینا, کیا ایسی چیز کیا تھی جس پہ آپ دل ہار بیٹھی؟ یہ بہت اچھے انسان ہے, ان کی پرسنالٹی فیک نہیں ہے, اوریجنل ہے, بہت اچھے انسان ہے یہ. اچھا, عامر لیاقت حسین سے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں, لودھرا سے یہ کہانی ایک دم سامنے آئی سب کے سامنے کہ وہ آپ سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی, اور انہوں نے آپ کو ہر جگہ انٹروڈیوس بھی کرایا, رکن قومی اسمبلی تھے, اور پھر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس سارے سینیریو کو, اس سارے دنوں کو آپ کس طریقے سے یاد کرتی ہیں اور کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ برا وقت یاد بھی آتا ہے, اچھا وقت بھی یاد آتا ہے, لیکن اس پہ میں کوئی کومنٹس نہیں کرنا چاہتی فی الحال. اچھا, اس پہ ایک 7.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ عدالتوں میں اپنا حق لینے کے لیے آپ جد و جہد کر رہی ہیں, تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ کورٹ فیصلہ کرے گی, میں کچھ نہیں کہہ سکتی, ابھی کوئی کومنٹس نہیں ہے میرا. نہیں تو کیا آپ اب شادی ہونے کے بعد بھی آپ وہ کیس لڑتی رہیں گی, یا آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ وڈرا کر لیں گی؟ جو حق ہے وہ تو ملے گا نا, ان سے ایک میری شادی رہی ہے, ایک ٹائم گزرا, وہ تو جو کورٹ فیصلہ کرے گی میں اس پہ حامی بھروں گی. اچھا, اس پہ نا سب سے ایک بڑا الزام جو ہے وہ آپ کی شخصیت پہ جو لگایا جاتا رہا ہے کہ جو ویڈیو لیکس ہوئیں, اس ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا ہے. نو کمنٹس. چلیں, اچھا نو کمنٹس ہی بالکل اس کا. اچھا, تو اب جو ہے وہ حکیم صاحب نے کتنا حق مہر جو ہے وہ طے کیا ہے؟ انہوں نے گاڑی بھی گفٹ کی ہے, 5 لاکھ حق مہر بھی دی ہے, ادروائز گھر وغیرہ سب کچھ دیا. اچھا, نہیں تو اب مہر میں کیا لکھا گیا ہے؟ مہر میں گھر لکھا گیا ہے, گاڑیاں لکھی گئی ہیں, اور ان کی اپنی مرضی تھی, انہوں نے اپنے خوشی سے لکھوایا جو بھی لکھوایا, ہماری کوئی ڈیمانڈس نہیں تھی. آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز نہیں تھی, جو بھی تھا وہ حکیم صاحب کی طرف سے ان کے دل کی آواز تھی. تو ابھی آپ جو ہے وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھی ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب نکاح ہو جائے تو عورت محبت کر بیٹھتی ہے اپنے مرد سے, تو ہو گئی ہے محبت. اچھا, اب پبلکلی جو ہے وہ پہلی مرتبہ آپ دونوں اس طریقے سے ہاتھ تھامے, نکاح تو ہو گیا, پہلے ہو گیا, اور اب آپ سامنے آ رہے ہیں, تو
लोग जो है वो सोशल मीडिया पे चीज़ों को ट्रोल भी कर रहे हैं, चीज़ों को खींच भी रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो अब आप अपने रिश्ते को किस तरीके से देख रही हैं? मैंने निकाह किया, कोई जुर्म तो नहीं किया ना, मैंने सुन्नत अदा की है, और जाहिर सी बात है हर औरत को करनी चाहिए, मर्द का सहारा चाहिए होता है औरत को, और जो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने अपने मर्द का, इन्होंने मुझे प्रपोजल भेजा और मैंने इनसे निकाह कर लिया, काफ़ी सोच समझ के। हकीम शहजाद साहब, आपको भी इस रिश्ते के हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दानिया शाह से कब लगा कि आपको दानिया शाह से शादी कर लेनी चाहिए? दानिया शाह की वालदा मेरे पास जाती हैं दवाई लेने की घर से, मुझे नहीं पता ये कौन है क्या है, मैंने इनकी पर्सनैलिटी देखी, मैंने कहा इनको बिठाएं, अभी इनको खाना खिलाएं, फिर देखते हैं। थोड़ी देर बाद लड़का आया मेरे पास, कहता है वो दानिया शाह की वालदा आई हुई है। बहरहाल जी वो रेस्पेक्ट थी एक, जैसे हर आने वाले बंदे की रेस्पेक्ट मैं करता हूँ। तो तारुफ वहाँ से हुआ, दवाई लेकर ये घर आ गई और कहने लगी कि कभी लोधरा आना बेटा, तुम हमारे घर ज़रूर आना। चलें जी, मैंने कहा अच्छा आएंगे। अगली मरतबा अम्मा फिर चली गई दवाई लेने के लिए, फिर कहा बेटा लोधरा आना तो मेरे घर ज़रूर आना। अगली मरतबा मैंने इनका इन्विटेशन कबूल कर लिया, मैं इनके घर चला आया। जब इनके घर आया, इनकी सूरत हाल वो सुना हुआ तो था सोशल मीडिया पर, आमिर लियाकत साहब का नाम सुना हुआ था, मामलात भी मुझे पता थे, हर बंदे को पता थे। तो मैंने इनकी जो वहाँ हालत देखी ना, हालत इज़ार जिसको बोल सकते हैं, कि दो लेडीज़ हैं, एक छोटा भाई है घर में, और वो केस लड़ के कर्ज़ों में लिथड़े पड़े हैं, अदालतें वकील उनको खा गए हैं। यहाँ से कराची जाना, फिर कराची से घर आना, भैंसें बिक गई, कटड़े बिक गए, बछड़े बिक गए, जेवर बिक गए, हर चीज़ बिक गई, और बाकी अब बचा है तो जिस्म बचा है। मैंने देखा, समझा सारी बात को परखा। परखने के बाद मैंने कहा अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म, कोई आर्डर। अम्मा ने कहा बेटा हमारी कोई हेल्प हो सकती है केस वाले सिलसिले में तो कर दें। मैंने कहा अम्मा जी मैं ज़रा बंदा हूँ डीलर किस्म का, मेरे साथ जो बात करनी है ना वो ठीक वाली करनी है, मैं पीछे हटने वाला बंदा नहीं हूँ। तो मैं ये कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन इस बात की मुझे गारंटी दें कि आप मेरे साथ खड़े होंगे। कोई वीडियो जिसने नहीं बनाई, ये बिल्कुल बेगुनाह है, 100% ये बेगुनाह है। 2-4 मरतबा मैंने अपनी गाड़ियाँ, अपने बंदे, अपने सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ भेजे। मैंने कहा जाएँ पेशी पर, जब आप जाती हैं कराची। जाने आने के बाद मामलात वो कहते हैं ना कि हवा चल पड़ती है। मेरी फैमिली तक इसका जिक्र तस्करा नौकरों ने पहुंचा दिया कि हकीम साहब जो है ना उधर बड़े डोरे डाल रहे हैं। बात नहीं थी, बात थी हेल्प तक की कि मैं इनके साथ हेल्प करने लगा हूँ। पर फैमिली में कुछ लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तुम उधर बहुत ज़्यादा जाते हो। मैं नर किस्म का बंदा हूँ, मैं किसी के आगे कैसे लगने वाला था। मैंने कहा जाता हूँ, फिर बात बिगड़ती गई। मैंने इससे कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ, लोग जो है ना तुम्हारे वसेब वाले, मेरे वसेब वाले कुछ और नज़र से देखने लग गए हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम लोग निकाह कर लें। तो निकाह का कहना था, ये तो भाग गई भाई। फिर मैंने जो पापड़ बेले हैं, फिर मैं कह बैठा, एक मेरी आदत है, मेरे दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो जाए दिमाग में, फिर वो ख्वाहिश मैं पूरी ज़रूर करता हूँ। मैं इसको कह बैठा, फिर मोहब्बत हो गई। अच्छा, मोहब्बत जो है बड़ी एक अहम बात है। तो आपने अब खुद एतराफ़ किया कि आपको दानिया शाह से मोहब्बत होगी, तो सवाल बनता है कि क्या दानिया शाह आपकी आखिरी मोहब्बत होगी? देखिए, ये पहली या आखिरी वाली कोई बात नहीं होती। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मुझे शरन हुक्म है कि मैं शादी करूँ, पहली करूँ, दूसरी करूँ, तीसरी करूँ या चौथी करूँ। ये मेरी चौथी बीवी है, इससे पहले मेरी 3 बीवियाँ हैं। मैंने इसको बताया था कि मेरी 3 बीवियाँ हैं, उसके बावजूद मैं तुम पे डोरे डाल रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, दिल के हाथ हूँ, तो मेहरबानी कर। यकीन माने इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं प्रॉपर्टी वाला बंदा था, इसके पास आना, फ़ोन पे वो चैटिंग करना, मैसेज का जवाब ना मिलना, मुझे रात को नींद ना आना। फिर आप नहीं सोच सकते कि मुझे कितने पीरों से तवीज़ यही रुक जाएं। ये तस्दीक करती हैं आप इन सारी बातों की जो हकीम साहब कह रहे हैं? ये कॉल करते थे, मैं कॉल नहीं उठाती उनकी, मैसेज भी करते थे, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, और वैसे मैं किसी को भी नहीं करती, तो इसलिए। फिर कहाँ आप इनकी मोहब्बत के आगे आप कहाँ दिल हारी? मैं काफ़ी सोच रही थी। मैं बताता हूँ। जो मेरी पहली वीडियो इसके साथ वायरल हुई, वो तो ऐसे टिकटॉक मैंने बनाई थी कि मैं इसका वकील हूँ और मैं आ गया हूँ मैदान में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। मैं इससे कंफ्यूज था उस पहली वीडियो में कि मैं इसका वकील हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं इसके साथ। मेरे जहन में आया कि चलें इसके वो केस के हवाले से मैं बात कर देता हूँ। वो बात मैंने की, वो बात वायरल तो हो गई, लेकिन नीचे जो कमेंट्स पढ़ने को मुझे मिले वो बड़े नेगेटिव कमेंट्स थे
कुछ लिखा हुआ था कि कातला औरत ये तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी उजाड़ देगी। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल इनके किरदार के हवाले से भी खासी बातें की गई, लेकिन आपने इनको कैसा पाया? मैंने इनको पॉजिटिव पाया। वो जो नेगेटिविटी थी वो सारी बकवास थी, गलत था वो। मैंने इनको पूरी तरह से आजमाया, इनको देखा, इनके मैं यूँ कहें कि इनके किरदार पर मैं क्या कहूँ, अब मैंने इससे पाकीज़ा औरत नहीं देखी पूरी दुनिया में। जो मैंने सुना था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था। उसको आजमाइश में तोलना, तराजू में तोलना। हम हकीम लोग हैं, हमारे पास सारे दिन लोग आते हैं, स्कैनर लगा हुआ है हमारी आंखों में, बंदा किस पानी में है, बंदे का किरदार क्या है, करैक्टर क्या है इसका, सब हम समझते हैं। बहरहाल जी, मैं इससे मुतासर हुआ, इसने मुझे भगाया, जिस तरह भगाने का पूरा पूरा हक़ होता है। मैं फिर मजबूर हो गया। मैंने कोई ऐसा यूँ कहें कि कोई ऐसा काम नहीं है जो इश्क में ना किया हो। इसके पीछे सारी मेहनतें की, सारे वज़ाइफ कर डाले, सारी नमाज़ें पढ़ डाली, सारी दरबारें फिर डाली, पागलों की तरह मैं फिर रहा था। फिर इसकी अम्मा से मेरी मुलाकात हुई। मैं कि अम्मा कुछ मेहरबानी कर। अम्मा ने कहा वो नहीं मानती, मैं क्या करूं। चले जी, फ़ोन, मैसेज, कॉल, वो दोस्ती लगाने वाली ख्वाहिश थी, सोच थी, कम से कम हेलो तो करे, कोई गपशप कर लेते हैं। किसने गपशप ना की, कुछ ना किया। 3-4 महीने मुझे बर्बाद करने के बाद, जलील करने के बाद, इसने कहा अच्छा चलें ठीक है, अगर आप इतने ही अच्छे बंदे हैं ना तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, पक्का पक्का। मैंने कहा पक्का पक्का क्या मतलब? कहते हैं निकाह कर सकते हो मुझसे। यूं कहें कि मेरे ऊपर एटम बम गिर गया। वो दोस्ती वाली बात तो रह गई ना एक तरफ, मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी, मैं तो आया था कुछ चंद दिन अफेयर चलाने के लिए, ये मैं कहाँ फंस गया। अच्छा, मतलब आपने भी ये सोचा हुआ था कि ये ताल्लुक जो है वो, आपने भी इस ताल्लुक को सिर्फ चंद दिन तक हुआ था ना, मैं तो कि आप इसको, आप भी इनके किरदार के हवाले से आप भी उस वक्त तक जो है वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे थे जो इनके पेज पे आ रही थी। जैसे लोग फॉलो कर रहे थे, मैं भी तो लाजमी बात है, जैसे सुनी सुनाई बात थी, ठीक है, वो नेगेटिव बातें मेरे जहन में भी तो बैठी हुई थी। जब इसने कहा कि मैं सिर्फ निकाह करना चाहती हूँ, निकाह करने का दम है तो मेरे साथ बात करो, अदरवाइज़ नहीं। पीछे मेरी 3 बीवियाँ थीं, घर था, बच्चे थे, सारा। मैंने कहा भाई मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, अभी मैं अल्लाह कैसे निकाह करूँ तुम्हारे साथ? हाँ, खुफिया निकाह कर सकता हूँ, मौलवी बुलाओ, निकाह करता हूँ मर्दों की तरह। कहती हाथ पकड़ा, छोड़ोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं छोड़ता। चलें ये मान गई, फिर निकाह हुआ हमारा। क्या क्या लिखा निकाह में? हमने दानिया से भी पूछा। मेहर में आप बता दें कि आपने क्या क्या लिखा है। उधर से तो आप 7.5 करोड़ रुपए का केस लड़ेंगे। हकीम साहब, आपने क्या क्या लिखा है? देखिए जी, लिखने वाली कोई बात नहीं है। मैंने निकाह में इनको हर चीज़ दे दी है, अपना दिल दे दिए, अपनी पूरी जायदाद इसको दे दी है। ये हुक्म करे क्या चाहिए इसको, इसके लिए हर चीज़ हाजिर है। इसके पास घर है, वो इसको दे दिया है। इसको ग्रैंडी गाड़ी मैंने लेकर दी है, वो तकरीबन 60 लाख मालियत की गाड़ी है, बाहर आई हुई है, ठीक है, वो मैंने इसको लेकर दे दी है। वो 4 सेट सोने के मैंने इसको दिए हैं। बाकी क्या दूँ, मांगे क्या चाहिए इसको? ये हुक्म करे आसमान ज़मीन पर ले आऊँ। हाँ जी, इस पे तो आसमान ज़मीन पे आ रहा है। क्या मांग रही हैं आप? हकीम साहब देने के मूड में? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, जो दे दिया वही काफ़ी है। देखिए, अब तो नाम मिल गया तो। निकाह होने लगा था, मैं इसकी एक और खूबी बता दूं, एक बात जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा था कि क्या चाहिए अम्मा, अम्मा बताओ क्या लिखना है। इसको मैंने कहा, मतलब बात हो रही थी, इन्होंने कहा नाम चाहिए आपका, वो पैसे वैसे या कोई वो तमाशा नहीं है। बड़ा मैं मुतासर हूँ। मैंने कहा कुछ लिखना है तो लिख दें, और लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद फिर मैंने मौलाना से कहा कि हर चीज़ लिख दें। ये सिक्योर है, इसका मुस्तकबिल सिक्योर है, इसका निकाहनामा सिक्योर है, इसका घर सिक्योर है। दुनिया की कोई ताकत इसको जो है ना वो अटैक नहीं कर सकती। मैं खड़ा हूँ इसके साथ। ये हाथ पकड़ा, ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मैं इसके साथ हर आग में खड़ा हूँ, हर खुले आसमान के तले इसके साथ खड़ा हूँ। इसको छोड़ने का सवाल भी नहीं पैदा होता। मैंने मोहब्बत। सोशल मीडिया पे आप जो एक इस रिश्ते को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ये आप दोनों से सवाल है दानिया साहब, आपसे भी कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपने तो हकीकी मानों में निकाह किया है और आप पब्लिकली भी एक तकरीब में आपके वालिद भी बैठे हैं, दानिया शाह की वालदा भी बैठी। तो अब आपको, मतलब आप इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी तक लोग बिलखुसूस आपको तो हकीम साहब बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं आपको सोशल मीडिया पे, तो अभी आप इन चीज़ों को किस तरीके से दोनों देख रहे हैं? अगर हम देखने लगे तो हम एक दिन भी ताब नहीं आएंगे। जूते की नोक पर लिखा हुआ है तमाम मुआशरा, वो मुआशरा जो हमें नेगेटिव देखता है। कुछ लोग पॉजिटिव भी देखते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुन्नत नबी को इस बंदे ने ज़िंदा की है, बंदा दलेर है, बंदे ने अफेयर नहीं जलाया, चलें शादी कर दी। शादी यही है ना, आज के दौर में कोई बंदा नहीं करता शादी, लोग भागते हैं, खौफ खाते हैं, दलेरी नहीं होती, बुज़दिल लोग होते हैं। मैंने निकाह किए, मैंने इसको अपना नाम दिया और अब मैं पूरी वर्ल्ड के सामने भी लेकर आया हूँ। अभी भी शायद ये निकाह खुफिया रहता कोई साल, लेकिन मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा उधर चक्कर है,
तुम हलफ दे सकते हो उसका? तो जब हलफ पे बात है, मैंने कहा हलफ क्या देना है, बीवी है मेरी, दिस इज़ निकाह नामा और दिस इज़ मैं हूँ, फिर मैं सामने थी गया। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से जो है वो रिश्ता जो है वो सामने आया है। दोनों मियाँ बीवी हाथ में हाथ पकड़े जो है वो पब्लिकली मौजूद हैं। वो निकाह जो चंद माह कबल हुआ था, अब वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर हैं और दोनों साथ जुड़े हुए हैं।